अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रोफेसर उमर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। आज के लेक्चर के हमारे 3 हिस्से होंगे और ये हमारा लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। फर्स्ट पोर्शन में हम बात करेंगे व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट डज मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। In the second part, we will discuss that what is the importance of parts of speech in a sentence or in a language. And then in the end, we will talk about the definitions of different parts of speech. So let's start with the first outline. What does mean by parts of speech? So as we have different parts of our body, in the same way there are different parts of our language. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं एंड वी नेम देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इन द सेम वे एक लैंग्वेज के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको भी डिफरेंट नेम दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन आ सेंटेंस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जी कि एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स और उन पार्ट्स को हम नाम देते हैं उनके फंक्शन की बेस पे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कि जब तक ये डिफरेंट पार्ट्स आपस में मिलेंगे नहीं तो एक मीनिंग डेवलप नहीं हो पाएगा। सो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं इन आ सीक्वेंस in an order that is given by the grammar of that language and then they create a meaning। कि जब इन डिफरेंट पार्ट्स को हम ग्रामर की रूह से ग्रामेटिकली एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो ये एक मीनिंग डेवलप करते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर के एंड वाले हिस्से में ये देखते हैं कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम क्या हैं और उनकी शॉर्ट सी डेफिनेशन, और वी विल डिस्कस इन डिटेल ईच पार्ट ऑफ स्पीच इन आवर कमिंग वीडियोस। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल let's talk about what are the parts of speech. The first one is noun, the second one is pronoun, the third one is verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So these are the 8 parts of speech. Now let's talk about one by one about each part of speech. The first one is noun. What is noun? The name of a person, place or thing is called noun. For example, Akbar is a king. So in this sentence, Akbar is noun. It is the name of a person. Then there is pronoun. Pronoun is a word that is used in the place of a noun. ऐसा लफ्ज जो एक नाउन की जगह यूज किया जाता है, that is called pronoun. For example, Aslam was absent in the class. He was ill. In the second part of this sentence, we have used he. So he is a pronoun in this sentence. Next, verb. A verb is a word that shows a state or an action. एक ऐसा लफ्ज जो एक स्टेट या फिर कोई एक्शन शो करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल,
In this sentence, the word play is a verb. It suggests an action. Then adverb. What is adverb? Adverb is a word that adds something in the meaning of a verb, adjective and an adverb. एक ऐसा लफ्ज जो किसी वर्ब के, एडजेक्टिव के और किसी और एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स slowly. So in this word sentence, the word slowly, it is an adverb. It adds something in the meaning of a verb speak. So इस sentence में हमारा जो word slowly ये है, ये adverb है क्योंकि ये हमारे verb speak में कुछ add करता है. Speak slowly. Next, there is adjective. So this adjective is a word that adds something in the meaning of a noun or pronoun. ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन के या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, that word is called adjective. For example, he is an intelligent student. So here the word intelligent adds something in the meaning of a student. Student is a noun. Intelligent is an adjective. So it adds something in the meaning of a noun, student. In the next, preposition. So preposition is a word that indicates a location or some other relationships between noun or pronoun and other parts of the sentence. For example, the cow is in the garden. So in this sentence, the word in is a preposition. इस सेंटेंस के अंदर the word in जो सा है उसने हमें काउ की लोकेशन के बारे में बताया है कि काउ कहाँ पे है. सो प्रेपोजिशन वो वर्ड जो किसी जगह चीज़ की लोकेशन के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में या डिफरेंट वर्ड्स के, प्रोनाउन के और डिफरेंट पार्ट्स के आपस में रिलेशन के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. एंड देन कंजक्शन. सो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट joins two words, two clauses or two sentences. ऐसा लफ्ज जो दो लफ्ज़ों को या दो क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, ऐसे वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4. असलम and Akbar play tennis. So in this sentence, Aslam and Akbar, they are joined with a conjunction and. Then interjection. Interjection is a word that shows or expresses sudden feelings. Conjunction एक ऐसा लफ्ज जो sudden feelings को, sudden emotions को एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, आई वॉन द मैच. अलास, ही फेल्स इन द एग्जाम. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आई हैव डिस्कस्ड विद एग्जाम्पल. उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है वो समझ आ गया होगा. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल के अंदर 1 by 1 डिस्कस करेंगे अपनी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर. अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना,
लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।